Hello students, welcome to our channel Learning Hindi. Dear students, we are reading Unit 2 of English Practice Book of Class 7 DAV Board. बच्चों, हमने अपनी लास्ट क्लास में Unit 2 Sentences के पार्ट 2 में Assertive and Interrogative Sentences को पढ़ा था। साथ ही आपके प्रैक्टिस बुक के यूनिट 2 के वर्कशीट 9 तक हमने एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए कंप्लीट किया था, सॉल्व किया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नेक्स्ट वर्कशीट को करेंगे, साथ ही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। मगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की स्टडी से पहले पिछली क्लास में आपको दिए गए होमवर्क जो कि पंक्चुएशन बेस्ड था, उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे ताकि आप अपने आंसर्स को चेक कर लें। तो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज बी ऑफ वर्कशीट 9। यू ऑल गेट रेडी विद योर notebook. So students, let us read once again the instruction. Read the paragraph given below using a pen. Insert capital letters, commas, full stops and question marks wherever required. Okay, so you have to punctuate this paragraph. As a rule, we have to write here capital H because it is starting. The sentence is starting with the word he. He was a tall man who was always dressed in black. Here the sentence ends. So put a full stop. Then again, new sentence begins with capital letter. He had an unusual face. Put here full stop. Again write I in it because it is the starting of this next sentence. It was very pale, comma, with a long well-shaped nose, comma, cold red eyes and a thin mouth, comma, filled with pointed teeth. Again, this is the end of the sentence, so put here full stop. Again start the new sentence with capital letter. He had long hair, put comma, sharp fingernails and his breath smelled terrible. Again put a full stop. Start the new sentence with capital letter. When he saw blood, a strange hungry look came into his eyes. Put a full stop here. Again begin a new sentence with capital letter. His eyes shone red and he began to shake after he had drunk blood. Put a capital letter here. His face became taller than usual. Full stop. Again a question is there. Can you guess who this man was? So put here capital C in the beginning of the sentence and then right here put here a comma. Okay, can you guess who this man was? It's a question, so put here a question. Student, I hope you would have done it correctly and most of your uses have been found by you correct. Now let us move on the next worksheet. Students, read these sentences given in worksheet 10. The first one is how dare you. Second one is look out, you're going to fall. Third one, what a picturesque novel. Fourth, you can't do that. ये सारी sentences देखने में आपको थोड़ी अलग सी नहीं लग रही? Of course, आपने exclamation mark को notice किया होगा. This exclamation mark here at the end of the sentence, यहाँ भी और यहाँ भी। आपने end of each sentence में क्या देखा? exclamatory sign, note of exclamation भी बोलते हैं उसे, exclamation mark भी कहा जाता है। तो आपने इस सिंबल को देखा। इस सिंबल को देखने के बाद आप क्या कंक्लूड कर रहे हैं? यहाँ देखिए, इस सेक्शन से जो कि बॉक्स में दिया हुआ है आप समझ जाएंगे कि एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज क्यों होता है और कहाँ होता है। एन एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड instead of a full stop at the end of a sentence to show that the word have a special meaning. ठीक है ना? एक्सक्लेमेशन मार्क का इस्तेमाल फुल स्टॉप के बदले में सेंटेंस के एंड वाली प्लेस पे किया जाता है। और क्यों किया जाता है? ये शो करने के लिए कि these words have special meaning. ये जो how dare you है, इनका एक स्पेशल मतलब है। For example, it can be used to show anger, surprise, joy, danger or amusement. ठीक है ना? आपने पहले भी पढ़ा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि ये जो सेंटेंसेस होते हैं वो सडनली हमारे
मुंह से निकले होते हैं इन अ स्टेट ऑफ grief, anger, surprise, joy. They are the sudden feeling of mind. अचानक से जब हम हमारे माइंड को गुस्सा आता है या आश्चर्य होता है या कुछ बहुत अच्छा लगता है या फिर खतरे का अनुमान होता है, खुश होता है, किसी भी तरह की मेंटल फीलिंग में अगर हमारे मुंह से कोई सेंटेंस, कोई वर्ड बाहर आ जाता है तो वहाँ पर हमें इस मार्क का, इस एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करना होता है फुल स्टॉप की जगह, ठीक है ना। और कौन से यूज हो सकते हैं? इट कैन बी यूज टू अट्रैक्ट अटेंशन, कई बार अटेंशन लेने के लिए भी यूज किया जाता है, जैसे यहाँ देखिए हेल्प, यहाँ पर भी यूज हुआ है। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एम्फेसिस, कई बार अपनी बातों को जोरदार तरीके से कहने के लिए भी एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया जाता है। यहाँ देखिए नो एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया हुआ, नो यू कांट गो देयर, यानी यहाँ बहुत जोरदार तरीके से मना किया जा रहा है, कहीं जाने से मना किया गया है। तो दैट्स वाई यहाँ पे एम्फेसिस को ले करने के लिए एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज किया गया है। तो स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम जब आप वेरी गुड या गुड जैसे रिमार्क्स देती हैं तो वहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन क्यों देती हैं? स्टूडेंट्स आस्क मी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ठीक है ना। तो ऐसा क्यों होता है अब आप समझ गए होंगे, बिकॉज सडनली आई फील जॉय आफ्टर लुकिंग एट योर होमवर्क और क्लास वर्क एंड दैट आई एक्सप्रेस बाई राइटिंग दीज रिमार्क्स इन दिस वे। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि जब भी किसी सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी साइन हो, एक्सक्लेमेशन मार्क हो, तो उसका एक स्पेशल मतलब होता है, ये आइदर शो, आइदर एंगर, आइदर सरप्राइज और जॉय, डेंजर या फिर अम्यूजमेंट को एक्सप्रेस करता हुआ सेंटेंस हो सकता है। तो जब भी ऐसी सेंटेंस आपको लिखना हो तो आप बहुत ही इजीली वे में इस एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज कर सकते हैं। फील इजी टू यूज दिस मार्क। नाउ व्हाट डू यू थिंक दीज पीपल आर सेइंग? यहाँ देखिए कुछ लोगों के पिक्चर्स बने हुए हैं, आपको क्या लगता है ये लोग क्या कह रहे हैं? राइट योर आंसर्स in the bubbles. One has been done for you. यहाँ देखिए इस बच्चे के जेस्चर, पोस्चर से क्या लग रहा है, ये क्या बोल रहा होगा? हाथ में देखिए इसके एक ट्रॉफी है, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा हो सकता है? I am the champion. He is feeling joy. वो बहुत खुश है और इसलिए जब खुशी की अवस्था में इस बात को बोलता है तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज हुआ है। अगेन देखिए इस बच्ची को देखिए कैसी, बहुत गुस्से में, क्या हो सकता है? कुछ भी बोल सकती है। मतलब कौन सी बात गुस्से में इसके मुंह से निकली हो सकती है, ये आपको एज्यूम करना है, ठीक है ना। हो सकता है कि ये गुस्सा हो, एनॉयड हो, या किसी को धमका रही हो, या इसका किसी से झगड़ा हुआ हो, आई विल सी यू लेटर, ये भी हो सकता है। यहाँ मैं अपना आंसर लिख दे रही हूँ, ठीक है। आप अपने आंसर्स को, मुझे लगता है मैं जब बच्चों के आंसर्स को चेक करती हूँ तो मुझे लगता है कि वो बेहतर एज्यूम करते हैं इन द कंपैरिजन विद द टीचर। तो एज्यूम करें, आप खुद गेस करें, क्रिएट करें कि वो क्या बोल सकती है और आप उसे यहाँ लिख दें। लिखे कुछ भी, बट यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना नहीं बोले। यहाँ देखिए ये बच्चा रो रहा है, ये क्यों रो सकता है? इसने कुछ खो दिया है, ये भी तो हो सकता है। क्या बोल सकता है? I have lost my anything, can mention here. I have lost my favorite pen, my diary, my phone, my watch. तो जो कोई भी चीज़ आप मेंशन करना चाहें आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लगता है किसी और वजह से रो रहा है तो उस वजह के करस्पॉन्डेंस में आप कोई भी सेंटेंस यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ देखिए टीचर बच्चे को इंस्ट्रक्ट कर रही है और इंस्ट्रक्शन में एक फीलिंग, इनके माइंड की फीलिंग झलक रही है। शी इज़ वेरी मच अनॉयड। ऐसा लग रहा है कि वो गुस्से में है और बच्चा जो है देखो उनकी डांट को चुपचाप से सुन रहा है। टीचर क्या बोली हो सकती हैं? हो सकता है ये बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता हो सकता है ये बच्चा क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं देता हो, इसने कोई भी ऐसी बदमाशी भी की हो सकती है और इसलिए टीचर हो सकता है उसे क्या बोली हो सकती हो? गेट आउट ऑफ माई क्लास राइट नाउ, गेट आउट ऑफ माई क्लास राइट नाउ, ठीक है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई सेंटेंस लगता है कि टीचर बोलती हो सकती है अभी, तो आप उसे भी यहाँ लिख सकते हैं, बट डोंट forget to use exclamation mark. Now this last one,
अब देखते हैं ये जो लास्ट पिक्चर है एक गर्ल की, इसको देखने से पता चलता है कि इसको इमीडिएट हेल्प की नीड है, इससे किसी की मदद की ज़रूरत है। तो क्या बोली हो सकती है? हेल्प मी प्लीज़, हेल्प मी प्लीज़। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हम इस जगह पे लिख सकते हैं जो इसके माइंड में क्या अभी चल रहा है उस फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा हो, ठीक है ना। ओ गॉड, वेयर एम आई, व्हाट कैन आई डू नाउ, सच काइंड ऑफ वर्ड्स कैन ऑल्सो बी स्पोकन बाय हर or him. So mention that whatever you think is appropriate seeing the girl's condition. Now let us move on worksheet 11. Students, let us go through the instruction at first. Put a full stop, comma, question mark or exclamation mark in the following sentences wherever required. So पहला sentence है I love the seaside. क्या लगता है आपको यहाँ क्या होगा? फुल स्टॉप होगा क्योंकि ये एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है ना। व्हाट आर यू डूइंग क्वेश्चन है, ठीक है। देख रहे हैं WH वर्ड के तुरंत बाद ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब आया है, क्वेश्चन है ये। यहाँ क्या होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क। हैप्पी बर्थडे ग्रैंडमा, यहाँ पर ये एक स्पेशल वर्ड है ग्रैंडमा के लिए। आप यहाँ क्या करेंगे? एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे, एक्सक्लेमेशन मार्क देंगे, यहाँ पर एक कॉमा भी देंगे। This is my friend Amy. Put here comma and put here a full stop. बच्चों यहाँ पर अगर आप स्पेशल वे में यूज़ कर रहे हैं इस सेंटेंस को तो आप एक्सक्लेमेशन मार्क भी लिख सकते हो और सिंपली यूजेस में आप फुल स्टॉप भी दे सकते हो। आगे देखते हैं। दिस इज रिडिकुलस। हाँ, ऐसा जब कोई मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट होता है तो बोलता है। तो मेंटल स्टेट को शो करने वाला जो सेंटेंस होता है वो क्या, उसे हम एंड करते समय क्या यूज करते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ टेरिबल साइट, ये भी एक अचानक से सडन फीलिंग ऑफ माइंड है, पुट हियर एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ टेरिबल साइट, ये भी सडन फीलिंग ऑफ माइंड है और इसलिए यहाँ पे नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए। वेयर इज इट इज अ क्वेश्चन, पुट हियर क्वेश्चन मार्क। आई विश आई कुड गो आउट टू प्ले, आई विश आई कुड गो आउट टू प्ले। तो ये क्या है? यहाँ पर विश है। जब भी विश को हम एक्सप्रेस करते हैं वो भी हमारा मेंटल स्टेट होता है। यहाँ पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। ही इज अ गुड फ्रेंड, यहाँ पर आप कॉमा भी यूज कर लें, दैट वुड बी फाइन। ही इज अ गुड फ्रेंड, पुट हियर फुल स्टॉप। आर यू क्रेजी, ये सेंटेंस ऐसा है अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो देन कैन पुट हियर क्वेश्चन मार्क, और अगर सिंपली सरप्राइज्ड हो रहे हो तो देन it's good to put here exclamation. Okay, exclamation mark is more suitable here in such kind of sentences because no one is going to answer that yes I am, no I am not. Okay, so leave this one and use exclamation mark. Now do it yourself part. Now let us do it yourself section. Look at the words phrases given below. They are in a jumbled order. Rearrange them to make meaningful sentences. One has been done for you. Students, यहाँ देखिए आपको jumbled order में कुछ sentences दिए गए हैं, आपको उन्हें unjumble करना है और उसको rewrite कर देना है उसके सही order में, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको बहुत सारे वर्ड्स मिले हैं, स्पोर्ट्स, इंटरेस्टेड एंड, रिक्रिएशन क्लब, आई इंटरेस्टेड, एम द, इन जॉइनिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं इस डूअर ऑफ द एक्शंस को यानी सब्जेक्ट को ढूंढने की और कोशिश करते हैं फ्रेम करने के लिए उसके हेल्प से, सब्जेक्ट की हेल्प से सेंटेंस को फ्रेम करने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन ये ऑलवेज करेक्ट नहीं होता क्योंकि कुछ सेंटेंसेस जो है वो पैसिव वॉइस में भी हो सकते हैं। तो बच्चों ये पूरे के पूरे आपके लिंग्विस्टिक स्किल पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझें, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही समझा जा सकता है, इसका कोई क्लियर कट रूल नहीं है, ठीक है ना। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इन सारे सेंटेंसेस को अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें और अपने नोटबुक में लिख डालें, आपको जो भी सूटेबल ऑर्डर समझ में आता है, एंड देन मैच योर आंसर्स विच आई एम गोइंग टू प्रोवाइड राइट नाउ। तो सेकेंड सेंटेंस में बी, क्वेश्चन नंबर बी में क्या सेंटेंस बन सकता है देखते हैं। व्हाट है, मे बी ये कोई क्वेश्चन हो,
शुरू करते हैं इससे. What, देन अगेन ऑक्सिलरी वर्ब को ढूंढते हैं कहाँ है. यस, हियर. What are the rules for its members and its membership. तो इसको तुरंत लिख डालें. What are the rules for its members and its membership. तो बच्चों आपने देखा यहाँ पर आपका आंसर है What are the rules for its members and its membership. ओके, अब चूंकि ये क्वेश्चन है तो यहाँ लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क दे देंगे. आगे है Aren't rules oh too many there. कोशिश करते हैं आंसर क्या बन रहा है. ओह, Aren't there too many rules. ध्यान देंगे यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन देंगे ओह के बाद, क्योंकि ये ऐसा वर्ड है जो कि सडन फीलिंग ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करता है. तो ऐसे वर्ड के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं. ओह, अल्लाह खुरे, वेल डन. तो इन सब के साथ एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ करते हैं. आपने पढ़ा भी होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंटरजेक्शन, जो लास्ट पार्ट होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का. तो ये एक इंटरजेक्शन है, इसलिए यहाँ पे ज़रूर से एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा. फिर आगे क्या बन रहा है. Aren't there too many rules. यहाँ आप क्या करें, चूँकि ये भी फुल स्टॉप का काम करता है, यहाँ पर आप कैपिटल ए लिखें. Aren't there too many rules. ये क्वेश्चन बन जाता है. ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब से अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है तो वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है. तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना कंपल्सरी है. नाउ एनीथिंग यू वुड डू नो इज लाइक देयर मोर. चलिए कोशिश करते हैं. आंसर क्या बन रहा है. इज देयर एनीथिंग मोर यू वुड लाइक टू नो. ध्यान देंगे. इज देयर एनीथिंग मोर यू वुड लाइक टू नो. And this question mark should be put at the end. अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ आंसर क्या बन रहा है कि members must not give or lend their membership cards to non-members. लिख डालते हैं. आंसर क्या हो सकता है. आंसर क्या होगा. Members must not give or lend their membership cards to नॉन मेंबर्स. नोट डाउन. आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है क्या हो सकता है. मेंबर्स सुटेबल क्लॉथिंग हैव टू फॉर वियर एवरी इवेंट. क्या हो जाएगा. मेंबर्स हैव टू वियर सुटेबल क्लॉथिंग फॉर एवरी इवेंट. लिख डालिए. मेंबर्स have to wear suitable clothing for every event. Let's stop डालिए. Members have to wear suitable clothing for every event. और ये लास्ट क्या है. Has to be if anyone wishes she two members to join supported by the club. क्या हो सकता है. If anyone wishes to join the club she has to be supported by टू मेंबर्स. लिख डालते हैं. मैच करें अपने आंसर्स को. इफ एनीवन विशेस टू जॉइन द क्लब शी हैज़ टू बी सपोर्टेड बाय टू मेंबर्स. यहाँ पे कॉमा का यूज़ करेंगे क्योंकि इफ क्लॉज है. स्टूडेंट, दिस इज द नेक्स्ट एक्सरसाइज इन दिस यूनिट. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड कंप्लीट अ डायलॉग दैट फॉलोज. देयर इज एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू. यहाँ देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा सीन है और इसमें बहुत तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं और उनकी नंबरिंग भी की हुई. यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इज द 10. नो, आई कैन नॉट फाइंड दैट. ओके, चलिए देखते हैं. आपको क्लूज भी दिए गए हैं. वाटरफॉल, फ्रेश वाटर, लुकआउट पॉइंट, हिल्स, केव्स, सीगल्स, castle, dolphins, forests, ship. Raghav and Sujata are talking about this place. Raghav says, let us look at this map. It's a map of the Travilla Island located in the Pacific. ठीक है ना. पैसिफिक का ये ट्राविला आइलैंड है, इमेजिनरी है फिलहाल, उसका मैप है. ठीक है. तो सुजाता को राघव दिखा रहा है इस मैप को. सुजाता, It's really interesting. What's that in the middle of the island? अब देखिए
पता कीजिए कि मिडल ऑफ द आइलैंड में क्या है। क्या है भाई मिडल ऑफ द आइलैंड में? मुझे तो लग रहा है ये कैस्टल। देखते हैं, ये देखो 6 नंबर में क्या है? कैस्टल है। अब आपको करना क्या है? डायलॉग को कंप्लीट करना है। बच्चों, आपके एग्जाम में डायलॉग कंप्लीशन का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है जो 3 या 4 नंबर का होता है, जिसको बच्चे के को अपने अंडरस्टैंडिंग के आधार पे कंप्लीट करना होता है। इस डायलॉग को आप क्या बोल के पूरा कर सकते हो? जब तक आप इसका आंसर नहीं दोगे अगला डायलॉग कंप्लीट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे? देयर इज अ कैस्टल इन द मिडल ऑफ द आइलैंड। अगर आप सिर्फ देयर इज अ कैस्टल भी लिख दो तो भी चलेगा। देयर इज अ कैस्टल इन द मिडल ऑफ द आइलैंड। आगे देखते हैं। अगर आप कुछ और भी डिस्क्रिप्शन देना चाहें कि यहाँ क्या क्या है तो आप अगली लाइन में लिख सकते हैं, जैसे देयर आर हाई बाउंड्रीज अराउंड दिस कैस्टल and there is an entrance too. Okay, so write the same here. It is surrounded by high walls and has an entrance too. Sujata: oh yes, there is a waterfall in the southeast. Raghav says, what are those numbered 4 and 8? तो चलिए देखते हैं नंबर 4 एंड 8 क्या है। नंबर 4 में मुझे तो केव्स दिख रही हैं और 8 में फॉरेस्ट दिख रहे हैं। हाँ, तो लिख दो, यहाँ आप लिख दें, numbered 4 are the caves and 8 are the forests. Raghav says, there must be a lot of creatures inhabiting the forest, I guess. अब यहाँ क्या हो सकता है? यहाँ पर हो सकता है can you notice? Can you notice? Yes, the map indicates the presence of seagulls on the island. Dolphins are shown to be near the sea beach. आगे राघव के लिए कुछ क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया, तो जब हमें आगे बढ़ने का क्लू नहीं मिल पा रहा तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं और इससे पता चल जाता है कि इससे कोहेरेंट कौन सी बात ऊपर हुई होगी। देखते हैं। आई कैन सी 2 ships moving in the direction of the island. I can see 2 ships moving in the direction of the island, so I think people must be visiting it. Okay, तो हो सकता है कि राघव ने सुजाता का ओपिनियन जाना चाहा हो कि पीपल यहाँ पे घूमने आते होंगे या नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बन रहा है? डू यू थिंक द पीपल वुड बी विजिटिंग हियर? देखिए नेक्स्ट डायलॉग से ये कोहेरेंट हो गया। I can see 2 ships moving in the direction of the island, so I think people must be visiting it. So students, this is the end of this unit. Today we learned about the exclamatory sentences, the uses of punctuation mark like comma, full stop, capital letters, exclamatory sign, note of exclamation, and one very important thing, how to complete the dialogues, how to do dialogue completion. So student, I hope you might have enjoyed doing this task. You might have enjoyed in this class. अब बहुत जल्द हम अपने next class में एक नई topic के साथ होंगे. Till then, bye bye and take care. Thanks for watching.